بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایسی بات بتانے والا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ ہو۔ دوستوں، ہمیں جو IMF لائف سپورٹ دے رہا ہے، ہمیں جو یہ قرضے مل رہے ہیں، ہم ابھی تک ڈیوالا نہیں ہو پائے، ابھی تک ہمیں ڈیوالا نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے وجوہات ہے دوستوں کچھ، نہیں تو جو ہماری حالت ہے وہ ہم تو پہلے کب کے ڈیوالا ہو چکے ہیں۔ وہ تو انہی کی زبانی ہے کہ ہم تو آپ کو لائف سپورٹ دے رہے ہیں، ویسے اب تو یہ موت تو آپ کی واقع ہو چکی ہے، معاشی موت تو آپ کو مل چکی ہے، لیکن یہ جو ہم آپ کو لائف سپورٹ دے رہے ہیں جو اب تک آپ چل رہے ہیں دوستوں، ان کے تیکھے سخت 10 مطالبات جو انہوں نے پہلے پروگرام پر ہمارے حکمرانوں کے آگے سامنے رکھے تھے کہ آپ نے یہ مطالبات آپ نے پورے کرنے ہیں تو ہم آپ کو لائف سپورٹ ہمیشہ مدد ملتی رہے گی، تو آپ کا ہمارے 10 مطالبات آپ کو ماننے پڑیں گے۔ دوستوں، وہ 10 مطالبات کیا میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، ویڈیو میں آخر تک رہے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ باتیں۔ دوستوں، سب سے پہلا مطالبہ کہ آپ نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کا جو ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، دوستوں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت عرصہ وہ نعرہ سننے میں نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے کہا اس کو ختم کر کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے نا وہ بھول جاؤ، بالکل زبانوں پر لاوے نہیں، اپنے پیدائش اپنے بنانے کے مقصد کو بالکل بھول جاؤ، اس کو نام آپ نے لینا نہیں ہے۔ تو دوستوں یہ تو ہو چکا ہے پاکستان کو کیوں بنایا گیا۔ نمبر 2، مغربی سیکولر جمہوریت کو اس کے جملہ متضمنات کے ساتھ تسلیم کرو، یعنی جو مغربی سیکولر جمہوریت ہے جو ہمارے ملک میں بھی رائج ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہماری طرح ہی اس کو قبول کرو، کہ جس طرح ہماری جمہوریت ہے اسی طرح آپ کی بھی ہوگی۔ دوستوں، ان کی جمہوریت کیسی ہے؟ دیکھو، ان میں جو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہے، ان میں ان کو لیگلی اگر عورت سے شادی کرنا چاہے اور مرد سے شادی کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہے، اور 95C کا قانون جو ہم نے بنایا ہے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا نظر ثانی کر اس کو ختم کرو۔ لبرلزم کا دور ہے، ہر بندہ کچھ بول سکتا ہے، ہر بندے کو بولنے کی آزادی ہے، اگر سلمان رشدی نے کچھ بول دیا تو کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ مغربی جمہوریت کو پوری ہماری طرح آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ ابھی آپ کو تازہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے پارلیمنٹ میں کون سے بل پاس ہوتے ہیں، جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹس، اس طرح بہت غیر اسلامی بل ہیں جو ہماری جو ہے نا اسلامی حیثیت کے بالکل منافی ہیں، لیکن وہ پاس ہو چکے ہیں۔ کیوں دوستوں؟ مطالبہ پورا کرنا ہے۔ اور نمبر 3، کشمیر کو بھول جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کشمیر کو بھول چکے ہیں، کشمیر اب ہمارا نہیں رہا، اب انڈیا نے اس پر اپنا تسلط قائم کر چکا ہے، اور یہ بہت پرانا مطالبہ تھا کہ کشمیر کو بھول جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو جو مطالبات دیں گے یہ ایک دم پورے کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ایک ساتھ ان کو پورا کرو، وہ کہتے ہیں یہ سنگ ہائی میل ہے، آپ اس راستے پر چلتے جاؤ گے تو آہستہ آہستہ آپ کو آگے مطالبات رکھتے جائیں گے، اس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ تو دوستوں، تیسرا مطالبہ کہ کشمیر کو بھول جاؤ۔ اور دوستوں، ان کا چوتھا مطالبہ جہادی تنظیموں کو کچل ڈالو۔ آپ کے ملک میں جو جہادی تنظیمیں پل رہی ہیں ان کو ختم کرو۔ دوستوں، ختم ہو چکی ہیں۔ حافظ سعید کو دیکھو نظر بند کیا گیا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، سپاہ صحابہ کی بالکل وجود ہی نہیں رہا۔ تو دوستوں، ایسی جہادی تنظیمیں جو ملک کے فائدے میں تھی ان کو کہتے ہیں ختم کرو، جہادی تنظیموں کا آپ نے بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ نمبر 5، طالبان سے تمام روابط ختم کرو اور اسامہ کو ہماری پکڑنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ مطالبہ کب پورا ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ دوستوں، ان کا چھٹا مطالبہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو، اس کو ختم کرو۔ آپ کے بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیٹ میں دانے نہیں، آپ بھوک سے مر رہے ہو، اور آپ ایٹمی ہتھیار کو جو ہے نا جدید سے جدید بنا رہے ہو۔ ختم کرو اس پروگرام کو، رول بیک کرو، ہمارے حوالے کرو اس کو۔ تو دوستو، یہ ان کا چھٹا مطالبہ کہ ایٹمی پروگرام کو ختم کرو، اس کو آگے چلنے مت دو۔ اگر آپ لائف سپورٹ چاہتے ہو، زندگی برقرار اپنی رکھنا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ ہمارے مطالبات ماننے ہوں گے۔ اور نمبر 7، دینی مدارس کو ختم کرو اور خطیبوں کو کنٹرول کرو۔ آپ کے جو خطیبوں کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، ان کو کنٹرول کرو، وہ ہمارے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرو، ان کو لکھا ہوا خطبہ دیا کرو۔ کیا سعودی عرب میں خطیب جو منہ میں چاہے بول سکتا ہے؟ کیا ترکی میں جو خطیب کے منہ میں ہے بول سکتے ہیں؟ باقی اسلامی ممالک دیکھو، سب کے خطیب کنٹرول ہے۔ آپ اپنے خطیبوں کو کنٹرول کرو اور مدارس کو ختم کرو۔ یہ آزاد مدارس، چی معنی دارت، یہ کیا معنی ہے؟
उनको हुकूमत के अंडर लाओ, उनको जो है ना तालीमी इदारों में जम करो, शरई कॉलेज अलग बना लो, वहाँ पर जो स्कूल से जो बंदे फारिग हों जाके शरई अदालत में पढ़े। ये क्या अलग मदारस आपने खोल रखे हैं दोस्तों? ये कहते हैं इनको ख़त्म करो, इन पर क्रैक डाउन करो। नंबर 8, IMF, WTO, ट्रिप्स और वर्ल्ड बैंक के तमाम मुतालबात को पूरा करो। यानी हमारे मालियाती इदारों की तरफ से जो भी मुतालबा आएगा उसको अपने मिनवान पूरा करना है। अपने अवाम का खून और निचोड़ो, और उन पर टैक्सेस लगाओ और उनको निचोड़ो, और हमें जो ताज़ा खून फराहम करो, इनको निचोड़ो, इनके रगों से जो बचाव कुचा खून है वो भी निचोड़ कर हमें फराहम करो। और दोस्तों IMF तो आप जानते होंगे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक को भी आप जानते होंगे, लेकिन ट्रिप्स एक ऐसा इदारा है कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत उन्होंने मल्टीनेशनल्स कंपनियां पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बिखेर दी हैं। वो कहते हैं कि चीज़ों को हम ही बनाएंगे, आप सिर्फ ख़रीदने वाले होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, आप वर्कर होंगे, आप मैनेजर होंगे, आप डायरेक्टर होंगे, आप कुछ भी होंगे, लेकिन आप बनाने वाले हम होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हमारी होगी, बाकी आप मजदूरी आपको मिलेगी, आपको मैनेजरिंग भी मिल जाएगी, आपको MD भी रख दिया जाएगा, आप वर्कर भी होंगे, लेकिन चीज़ हमारी बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की चीज़ें पूरी दुनिया में चल रही है, हमारे पाकिस्तान की भी ये हालत है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको संभाल रही है। और ट्रिप्स जो है दोस्तों, ये ना इनका इदारा है, झेली इदारा। ये कहते हैं हमने जो बीज डेवलप किए हैं, हमने जो उनके अंदर जेनेटिक तब्दीलियाँ की हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आपको फी एकड़ देती है, ये हमारी पैदावार है, इसमें जेनेटिक तब्दीलियाँ हमने की है, ये हमारी कमाल है, हमने अपनी सलाहियत इस्तेमाल की, तो इनको इस काम में मुतबादिल मिलना चाहिए, में इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो अब दोस्तों दुनिया उसी तरफ जा रही है कि इस इदारे के तहत जो WTO के अंदर आएगा, जो और इस IMF के अंदर जो मुल्क आएगा वो ट्रिप्स को कबूल करेगा, और वो मुल्क खुद अपनी बीज नहीं पैदा कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ वो हमसे बीज खरीदेगा। यानी इस रास्ते पर वो हमारी ज़राअत को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, हड़प लेना चाहते हैं पूरी दुनिया की ज़राअत को। वो कहते हैं बीज पूरी दुनिया को हम देंगे, कोई और मुल्क ये बीज नहीं दे सकेगा, क्योंकि इसमें हमारी सलाहियत लगी है, हमने दिमाग इस्तेमाल किया, हमने कोशिश की है, हमने मेहनत की, तो इसका हमें सिला मिलना चाहिए, और पूरी दुनिया को ये जदीद बीज हम देंगे, जो कम से कम एकड़, कम से कम ज़मीनों पर बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आपको देते हैं। तो दोस्तों ये इदारा जो ट्रिप्स है, ये पूरी दुनिया की जो है ना ज़राअत को भी हड़प कर देना चाहता है। और 9वां मुतालबा, इंडिया को तस्लीम करो सुपर पावर की हैसियत से। अगर आपकी एटमी पावर गई तो फिर आपको कबूल करना पड़ेगा इंडिया को सुपर पावर की हैसियत से, और उसके नीचे मालदीव और भूटान की तरह आपको सरेंडर करके रहना पड़ेगा। और 10वां मुतालबा कि मगरबी और इंडियन सकाफत के लिए दरवाजे खोल दो। यानी जो आइली कवानीन, जो सकाफती कवानीन है, उनके लिए अपने रास्ते खोल देने हैं। इंडियन सकाफत या मगरबी सकाफत अगर आपके मुल्क के अंदर आए तो बिल्कुल उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अंदर दाखिल हो जाए। तो दोस्तों अब हमारी सकाफत को देखें, हमारी शादियों को देखें, हमारी आइली कवानीन को देखें कि किसके हैं, या इंडियन के या जो है ना मगरबी दुनिया के हैं। तो इनके लिए भी हमने रास्ता खोल दिया है। जो भी सकाफत अंदर घुसे, जो भी तर्ज ज़िंदगी अंदर आए, हम उसे कबूल कर लेते हैं उसी तर्ज पर जैसे वो अंदर आती है। और दूसरा, आपने हमारे NGOs को कुछ नहीं कहना, हमारे NGOs को खुली छूट होनी चाहिए कि वो जो सी भी सकाफत को प्रमोट करे, जिस मुल्क में मगरबी सकाफत, इंडियन सकाफत जिसको भी प्रमोट करेगी उसके लिए मुकम्मल आज़ादी होगी, अपने NGOs पे हाथ नहीं डालना। और हमारे इंडियन सकाफत और मगरबी सकाफत को पूरी छूट अपने देनी है, रास्ते अपने दरवाजे अपने खोल देने हैं। दोस्तों ये 10 मुतालबात जो हमसे छुपाए जा रहे हैं, हम पूरे आवाम इससे बिल्कुल नाखबर है, किसी को कुछ पता नहीं। हमें ये महसूस हो रहा है कि वो IMF जो है ना पर तरस खा रही है, हमें जो है ना कर्जे दे रही है। दोस्तों वो तरस नहीं खा रही है, उनके ये मुतालबात हैं। अभी हमको बताऊं कि कौन कौन से पूरे हो चुके हैं। मुतालबा नंबर 1, पाकिस्तान क्यों बनाया गया है, पाकिस्तान का मतलब क्या। दोस्तों भूल चुके हैं हम।
हम अपने मकसद को भूल चुके हैं कि पाकिस्तान को हमने बनाया क्यों था। इसमें इसको इस्लाम का गहवारा बनाना था। वो कहते भूल जाओ इस बात को, और हम भी भूल चुके हैं दोस्तों। ये मुतालबा पूरा हो चुका है और मगरबी सेकुलर जमहूरियत को उसी तरह तस्लीम करो जैसे हमने तस्लीम किया, जैसे हमारे मुल्क में है दोस्तों। ये मुतालबा भी पूरा हो चुका है। इसके तहत जो हमारे पार्लियामेंट में बिल्स पास हुए हैं, वो शायद आपको पता हो कि ट्रांसजेंडर एक्ट और इसके ज़ेली पता नहीं बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो हमें पता नहीं, लेकिन ऐसे गैर इस्लामी कवानीन जो सेकुलर जमहूरियत के तौर आते हैं, यानी इंसानी हकमियत के तौर जो जमहूरियत चलेगी उसके अंदर जो कवानीन पास होंगे वो हमारे मुल्क में भी पास हो रहे हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट के ज़रिए से वो क्या करना चाहते हैं? वो यही करना चाहते हैं कि मर्द से शादी करने की इजाज़त हो और औरत को औरत से शादी करने की इजाज़त मिले। तो ये कहते हैं ये मुतालबा भी उनका पूरा हो चुका है, हमारे ऐसे कवानीन पास हो चुके हैं। और तीसरा, कश्मीर को भूल जाओ। कश्मीर को हम भूल चुके हैं। वो इंडिया ने अपनी जो है ना कब्जे में उसको ले लिया है, वो अब हमारे कब्जे में नहीं रहा। तो कश्मीर को हम भूल चुके हैं और जिहादी तंजीमों को हमने कुचल डाला है दोस्तों। पाकिस्तान में कोई भी जिहादी तंजीम मौजूद नहीं है। हाफिज सईद को देखो नज़रबंद है, सिपा साहबा के लीडरों को देखो सारे जो है ना कैद में है, बंद है, नज़रबंद है। कोई भी जिहादी तंजीम हमारे मुल्क में नहीं है। यह मुतालबा भी पूरा हो चुका है। और तालिबान के साथ तमाम रवाबित ख़त्म करो और उसामा को पकड़ने में हमारी मदद करो दोस्तों। उसामा को किसने पकड़वा के दिया? और हमने तालिबान के साथ कैसे रवाबत ख़त्म किए थे मुशर्रफ के टाइम में कि हमारे शमसी एयरबेस से 5000 से ज़्यादा की फ़्लाइट उड़ी हैं और तालिबानों पे शेलिंग की उन्होंने। तो दोस्तों हमने उनसे रवाबित भी ख़त्म किए थे और उसामा को हमने पकड़वा के दे दिया। ये मुतालबा भी पूरा हो चुका है। और एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करो, ये मुतालबा अब तक पूरा नहीं हुआ दोस्तों। ये पूरा होना बाकी है। और दीनी मदारस को ख़त्म करो और ख़तीबों को कंट्रोल करो, ये मुतालबा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक इसमें टाइम है, अभी तक पूरा इसको नहीं किया गया। और इंडिया को सुपर पावर की हैसियत से तस्लीम करो, ये भी हम अभी तक कबूल नहीं किए हैं। और मगरबी सकाफत के लिए दरवाजे खोल दो, ये भी पूरा हो चुका है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 10 मुतालबात में सिर्फ 3 मुतालबात ऐसे हैं जो बकाया है, बाकी 7 मुतालबात को हमने पूरा कर लिया है। इसी वजह से हमें लाइफ सपोर्ट मिल रही है। हमें जो है ना ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा, हमें जो है ना डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। उसमें दोस्तों ये वजह है। शायद आपको इस मुतालबात के बारे में पहले पता हो दोस्तों। ऐसे तीखे मुतालबात, ऐसे ख़तरनाक मुतालबात हमसे हुए हैं जिसको हमने सर तस्लीम खम करके उनको कहा है कि हम आपके सारे मुतालबात तस्लीम करते हैं। हमें फिर ज़िंदगी जीने के लिए हमें हमेशा उधार मिलता रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये मुतालबात इससे पहले मालूम नहीं होंगे और इस वीडियो से आपको मालूम हो गए होंगे। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।